My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th Standard English Literature. Myself Munishan Sharma, lecturer, Government Varishth Sanskrit School, Bilochi, Jaipur. Today is our lesson, a poem, The Human Abstract, composed by Blake. In last lesson, we have learned a poem which was also composed by Blake. The poem was The Divine Image. This poem, The Human Abstract, is a counterpart of the poem The Divine Image. The Divine Image was published in Songs of Innocence, whereas the Human Abstract was published in Blake's collection of poems Songs of Experience. So today, first of all, we will read together this poem, and after that I will explain you this poem in Hindi and English. First I explain you it in English and then in Hindi. Pity would we no more if we did not make somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we. And mutual fear brings peace, till the selfish love increase, then cruelty knits a snare, and spade it is his and spade his weights with care. He sits down with holy fears, and waters the ground with tears. Then humility takes its root underneath his foot. Soon spread the dismal shade of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery, and it bears the fruit of deceit, ruddy and sweet to eat, and the raven his nest has made in its thickest shade. The gods of earth and sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grew one in the human brain. Now listen the explanation of this poem in English. This poem, The Human Abstract, was published in Blake's collection of poems, Song of Experience. Here, the poet explains two is the effect of the higher moral values. We do not need pity if we did not make somebody poor. Mercy could be no more necessary if all people were as happy as we are. Mutual fear gives right to peace in the world till some flesh egoist people do not disturb peace. The vice of cruelty produces a trap and carefully spreads the weights of to tame the prey. The person who sits peacefully with holy fear and sheds tears of compassion, then, because of his humble attitude of mind, humility takes its root underneath his foot. Blake is not deaf to the ugly clamor of the world. He knew the bitterness of hate and the misery of the human kind. If in this poem he deals with the shade of mystery spread over the person's head, and this invites the caterpillars and flies to feed on human mystery, then
deceit is one. This fruit of deceit is reddish in color and sweet to eat. The raven has made its nest in the thickest shade. The gods of the earth and sea try to search the tree, but vain, because this tree grow the human brain and thus hidden from the gods. Now I will explain this poem in Hindi. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये जो कविता है ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब होता है मानव सार, मानव सारांश या सार। यह कविता काउंटर पार्ट है, विरोध में है, जो इससे पहले की कविता थी जिसका नाम था द डिवाइन इमेज, देवीय बिंब। ब्लेक ने अपनी जो कविताएं हैं वो उनका जो कलेक्शन था पॉइंट्स का, एक तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस था, एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस था, इन दोनों में प्रकाशित की और वो सारी की सारी कविताएं एक दूसरे के काउंटर पार्ट में लिखी गई, एक दूसरे के विरोध में लिखी गई हैं। यह कविता भी द डिवाइन इमेज की बिल्कुल विपरीत अर्थ में लिखी गई है और इसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट यानी मानव सार। यहाँ कवि उच्च नैतिक मूल्यों के प्रभाव की व्याख्या करके हमको समझाते हैं कि हमें दया की आवश्यकता नहीं है यदि हम किसी को निर्धन नहीं बनाते। पूर्व की जो कविता थी उसमें इनको वर्च्यूज को डिवाइन इमेजेस के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमको दया की जब तक आवश्यकता नहीं होगी जब तक हम किसी को निर्धन नहीं बनाते। करुणा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर सारे लोग इतने सुखी प्रसन्न हैं जितने हम हैं तो हमें किसी के ऊपर करुणा दिखाने की जरूरत नहीं है। परस्पर भय संसार में शांति को बढ़ावा देता है जब तक कि कोई स्वार्थी अहंकारी लोग शांति को भंग न करें। निर्दयता की बुराई एक जाल उत्पन्न करती है, इसलिए जो क्रूएल्टी है वो इसलिए बिछाती है, जाल बिछाती है और सावधानी पूर्वक अपने शिकार को फंसाने के लिए उसमें वेट यानी चुंगा या लालच की कोई टुकड़ा डालती है। वह व्यक्ति जो शांतिपूर्वक अपने पवित्र भय के साथ बैठता है और करुणा से आंसू बहाता है, तब उसके मस्तिष्क के विनम्र रुख के कारण विनम्रता उसके कदम के नीचे जन्म लेती है। ब्लेक संसार के भद्दे शोरगुल के प्रति, जो क्लैमर शब्द यहाँ पर यूज किया है शोरगुल के लिए, बहरे नहीं है, डीप नहीं है। वे मानव जाति की घृणा की कटुता और दुख से परिचित थे। अपने कविता संग्रह जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वे जीवन के भद्देपन का बड़े बखूबी वर्णन करते हैं और जो अनुभव ने उन्हें सिखाया है उसका यहाँ पर भरपूर उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि समय बीतने के साथ रहस्य की अंधकारपूर्ण छाया मनुष्य के मस्तिष्क में छा जाती है, अर्थात उस मस्तिष्क के ऊपर वह रहस्यमयी जो छाया होती है वो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और इसके ऊपर जो कीड़े हैं, इल्लियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, वो उनको खाने के लिए निमंत्रित करती है। तभी डिसीट का जन्म होता है, धोखे का जन्म होता है, कपट का जन्म होता है और धोखे का या कपट का जो फल होता है वो रंग में लाल लिए हुए होता है, रेडिश होता है, रडी होता है और खाने में भी मधुर मीठा होता है। इसी दौरान जो रविन होते हैं, काला कोहे होते हैं, वो कोहे अपना घोंसला इसकी गहनतम छाया में बना लिया करते हैं। पृथ्वी और समुद्र के देवता वृक्ष की खोज करने का प्रयास करते हैं परंतु असफल रहते हैं, क्योंकि यह वृक्ष तो मानव के मस्तिष्क में उपजता है और इस प्रकार से ये देवताओं से छिपा रहता है। उनकी जो सर्च होती है, उनकी जो तलाश होती है वो व्यर्थ रहती है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार इस कविता का जो व्याख्या है वो तुम्हारी समझ में आई होगी और निश्चित रूप से हम फिर अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।